سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں 4 قانونی بلز منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ متعدد بل ایوان میں بحث کے لیے پیش ہوں گے۔ اجلاس میں 1 قرارداد اور 2 تحریک پیش ہوں گی۔ الیکشن کمیشن میں آج 87 انتخابی عذرداریوں کی سماعت۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 49 اور شاہ محمد جتوئی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 38 عذرداریوں پر سماعت کر رہا ہے۔ ہمیں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ دھاندلی کا الزام لگانے والوں کو چاہیے کہ ثبوت پیش کریں۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ملکی خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹھٹہ میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما بات چیت کے لیے کمیٹیوں کے درمیان وضع کردہ ضابطے کی پاسداری کرے۔ طے ہوا تھا کہ بات چیت کے جاری عمل اور اس کے زیر غور نکات پر بیان بازی نہیں کی جائے گی۔ مشاورت مکمل ہونے پر باضابطہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور رابطہ کمیٹی کے سربراہ سینیٹر اسحاق ڈار کا بیان۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے مانسہرہ سے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی سردار محمد یوسف کی ملاقات۔ مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB-12 کچھی بولان سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے رکن میر عاصم کردگیلو کی بھی ملاقات۔ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان۔ حلقہ N43 ٹانک کم ڈیرہ میں 6 پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ کا عمل جاری۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش۔ جڑواں شہروں میں صبح سے ہی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش کا یہ سلسلہ 21 فروری تک جاری رہنے کا امکان۔ پہاڑوں پر برف باری، مری میں تیز اور ہلکی بارش۔ ایوبیہ نتھیا گلی میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ وادی نیلم دیپ اور پنچ ڈویژن کے بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ دیر میں رات گئے بھاری برف باری کے باعث بند ہونے والے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ 21 فروری تک جاری رہنے کا امکان۔ وادی سوات میں آج تیسرے دن بھی بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کالام میں 2 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ سوات کے دیگر علاقوں مدین، بحرین، مالم جبہ، گبین جبہ اور مرغزار میں بھی برف باری۔ سیدو شریف میں گھر کی دیوار گرنے سے 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ وزیر مواصلات کی دیر میں بارش کے باعث بند ہونے والے راستوں کو جلد بحال کرنے کی ہدایات۔ بھاری برف باری کے باعث بند ہونے والے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ NHA کے عملے اور مشینری نے کام شروع کر دیا۔ عوام خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ترجمان NHA۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ صہیونی حملوں کے باعث خان یونس کا النصر ہسپتال مکمل طور پر غیر فعال۔ آکسیجن کی کمی کے باعث شہید ہونے والے مریضوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ عالمی عدالت انصاف میں آج فلسطین پر اسرائیلی قبضے سے متعلق کیس کی سماعت۔ اسرائیل کو القدس سمیت
मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से फौरी इनखला का कहा जाए और फ़लस्तीनी अवाम को होने वाले नुकसानात की तलाफी भी कराई जाए। मेमोरेंडम और मिस्री दरख्वास्त में अदालत से मुतालबा। गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। इजलास अल्जीरिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। गाजा में फौरी जंग बंदी से मुताल्लिक मुतफ़िक़ा करारदाद लाए जाने का इम्कान। भारत में किसानों का दहली चलो मार्च छठे दिन भी जारी। दहली चलो मार्च में भारतीय किसानों के हक में दूसरे मज़ाहिब के अफराद भी शामिल होने लगे। भारत के शहर केरला का चर्च ऑफ साउथ इंडिया भी दहली चलो मार्च के हक में सामने आ गया। मोदी सरकार के मुसलसल झूठे दावे मुल्क को खुराक फराहम करने वाले किसानों के लिए सख्त आजमाइश हैं। कांग्रेस लीडर। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग। दोनों अफवाज ने भरपूर तरीके से तरबियत में हिस्सा लिया। नहायत खुशउस्लूबी और बुलंद जज्बे के साथ ट्रेनिंग से मुस्तफीद हुए। मशकों के जरिए खित्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात को कम करने में खासी मदद मिलेगी और अमन लाने की तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त साबित होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। सितंबर 2023 से मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। 5 जनवरी तक 11 फरवरी मुल्क भर में 11.757 मेट्रिक टन खाद, 3.687 मेट्रिक टन आटा बरामद। कार्रवाइयों के दौरान मुल्क भर से 24.856 मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई। मुतल्लिका हुकूमती इदारे मुल्क ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरमाए खेलों और सयाहत का फरोग। कुदरती हुस्न से मालामाल 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े गंगा चोटी पर पाक फौज, महकमा सयाहत, स्पोर्ट्स और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। स्कीइंग, आइस हॉकी, रस्साकशी और मार्शल आर्ट्स के अलावा मकामी खेलों के मुकाबले। मेले में सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। नेदरलैंड्स में रोटरडैम ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इटली के जानिक सिनर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हराया। इस कामयाबी के बाद जानिक सिनर नई आलमी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तीसरी पोजीशन किसी भी अतालवी खिलाड़ी की अब तक की सबसे बेहतरीन रैंकिंग होगी। अर्जेंटीना के फैकेंडो डियाज अकोस्टा का करियर का पहला एटीपी फाइनल। फैकेंडो डियाज अकोस्टा ने ब्यूनस आयर्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में डियाज ने चिली के निकोलस जेरी को शिकस्त दे दी। राफेल नडाल के बाद डियाज कोस्टा ब्यूनस आयर्स में जीतने वाले दूसरे लेफ्टी हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं सदफ अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले। पार्लियामेंट के ऐवान बाला का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में कानून साजी के बद में मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स निपटाए जाएंगे। इनमें 4 कानूनी बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि मुतादिद बिल्स ऐवान में बहस के लिए पेश होंगे। इसके अलावा इजलास में एक करारदाद और 2 तहारीक भी पेश होंगी। यहाँ पर अहम खबर आपको देते हैं कि इलेक्शन कमीशन में 87 इंतखाबी उजरदारियों की समाअत आज हो रही है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 49, जबकि शाह मोहम्मद चतोई की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 48 उजरदारियों पर समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में माशी और सियासी बहरान है। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क का सोचना होगा।
उन्होंने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बना देंगे। वो ठट्टा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब कर रहे थे। इसी हवाले से डिटेल्स जानते हैं शिराज अली डाहरी की इस रिपोर्ट में। ठट्टा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में मुश्किल हालात हैं और मुआशी बहरान को ख़त्म करने के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को इस वक्त आवाम की और जमहूरियत की फिक्र होनी चाहिए। हम वफाकी हुकूमत बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अपनी जाती मुफादात के बजाय पाकिस्तान के अवाम का मफाद के बारे में सोचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और वफाक में हुकूमत साजी में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जो लोग हमारे पास आए हैं उनका साथ देंगे। तमाम सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए, आप अपने लिए नहीं सोचे, आप पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम की सोचे। हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जमहूरियत के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएंगे। जो लोग धरनों की सियासत कर रहे हैं वो मुल्क को, जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने इस मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में होने वाले धरनों और इलेक्शंस में धांधली को मुस्तरद करते हुए मुखालफिन से कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह न किया जाए। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ठट्टा। आगे बढ़ते हुए बयान शामिल करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और राब्ता कमेटी के सरबराह सेनेटर इसहाक डार का, जिनका ये कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से दरख्वास्त करते हैं कि बातचीत के लिए कमेटियों के दरमियान वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कि दोनों जमातों की तश्कील करदा राब्ता कमेटियों का कोई रुकन या रहनुमा बातचीत के जारी अमल और इसमें ज़ेर निकात बयानबाजी नहीं करेगा। फरीक़ैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़िश्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। उन्होंने कहा कि मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके हैं और आज दोपहर 5वीं नशस्त तय है। आज के इजलास में अहम पेशरफ मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बासाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान से एक और सीट मिल गई। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB-12 कच्ची बोलान से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन मीर आसिम कुर्दगेलो ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मीर आसिम कुर्द ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान को हमेशा तरक्की दी। मीर आसिम कुर्दगेलो का कहना था कि वो बलूचिस्तान के अवाम को तालीम, सेहत और तरक्की में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इस मौके पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। गवादर समेत पूरे सूबे की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। CPAC के जरिए नवाज शरीफ पाकिस्तान, खास तौर पर बलूचिस्तान को तरक्की का मरकज़ बनाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल बनाएंगे, नौजवानों को लैपटॉप, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मीर आसिम और उनके साथियों का शुक्रिया अदा किया और पार्टी में उनकी शमूलियत पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आसिम कुर्दगेलो की हिमायत से मुल्क और सूबे भर के अवाम के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। मीर आसिम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। उनका कहना था कि अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे।
حلقہ N43 ٹانگ کمڈیرہ میں ری پولنگ کا عمل جاری ہے جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ اس وقت پی ٹی وی نیوز کی نمائندہ زعفران میانی پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی میانی، بتائے گا ری پولنگ کا عمل کس طریقے سے اس وقت جاری ہے اور یہ ری پولنگ جو ہے یہ کیوں کرانا پڑی؟ اس وقت مختلف امیدوار جہاں پر کون کون سے جو میدان میں ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس وقت میں موجود ہوں حلقہ N43 کے پولنگ سٹیشن نمبر 138 کوٹازم پر، جہاں پر ری پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہو چکا ہے جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ اگر اس حلقے N43 ڈیرہ ٹانگ کم ڈیرہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو یہاں پر آزاد امیدوار داور خان کنڈی کو 826 ووٹ کی برتری حاصل ہے، جس پر دوسرے نمبر پر آنے والے جمعیت علماء اسلام کے مفتی اسد مامون نے RO دفتر میں ایک درخواست جمع کرائی تھی، جس پر موقف اپنایا گیا تھا کہ حلقہ N43 کے 6 پولنگ سٹیشنوں پر رجسٹر ووٹروں کی تعداد 5438 ہے، جبکہ داور خان کنڈی کو 826 ووٹ کی برتری حاصل ہے، لہٰذا ان پولنگ سٹیشنوں پر ری پولنگ کی جائے اور ری پولنگ کے عمل نہ ہونے تک ان پولنگ سٹیشنوں پر حتمی نتیجہ جاری نہ کیا جائے، جس پر الیکشن کمیشن نے آج 19 فروری کو ان 6 پولنگ سٹیشنوں پر ری پولنگ کا حکم دیا تھا، جس پر ری پولنگ کا عمل جاری ہے۔ جی بہت شکریہ زعفران ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 میں سے 10 نشستوں پر کامیاب ہونے والوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عزیز مری سے۔ جی عزیز، تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستوں میں سے جو ہے 10 کا جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو چکا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 251 252 254 255 256 257 258 259 اس طرح 263 اور 266 کے جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 6 کے جو ہے نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوئے۔ فارم نمبر جو 47 ہے اس کے مطابق جو ہے 6 کے نوٹیفیکیشن ہونا جو ہے ابھی باقی ہے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جو مختلف جو اضلاع ہیں، ان میں سے نواب رضا خالد خان وقفی، عبدالغفور حیدری، صدر اختر جان مینگل، محمود اچکزئی، جمال ریسانی، میاں خان بگٹی اور دیگر جو اہم سے خارون خان جماعی اپنے علاقوں سے جو ہے کامیاب ہوئے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو کون سی حکومت جو ہے اپنا جو ہے قائد ایوان لائے گی۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ عزیز مری۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں حکومت کی تشکیل کے لیے بڑی جماعتوں PMLN اور پیپلز پارٹی میں مشاورت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے لیے کوئٹہ سے آپ کو دکھاتے ہیں عاظم بلوچ کی رپورٹ۔ بلوچستان اسمبلی میں نیا قائد ایوان کون ہوگا؟ کس نے وزارت اعلیٰ کا اہم منصب سنبھالنا ہے؟ بلوچستان اسمبلی کے 65 رکنی ایوان میں حکومت بنانے کے لیے 33 ارکان کی حمایت ضروری ہوتی ہے۔ PB9 کولو کے 7 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج کے بعد PMLN 11 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI 10-10 حلقوں میں کامیابی کے ساتھ دوسرے بڑی قوت ہے۔ ممکنہ طور پر ہمیشہ کی طرح صوبے میں مخلوط حکومت بنے گی۔ الیکشن 2018 میں بلوچستان اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت BAP 5 نشستوں کے ساتھ چوتھی بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نواز سے نواب جنگیز مری اور جام کمال خان، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نواب ثناء اللہ زہری اور سرفراز بگٹی مضبوط امیدوار ہے۔ نیشنل پارٹی 3، ANP 2، جبکہ BNP مینگل، BNP عوامی، عقد و تحریک اور جماعت اسلامی ایک نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ 6 آزاد امیدوار بھی ایوان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انتظار اب بلوچستان اسمبلی اجلاس کا ہے، جہاں منتخب ارکان آئندہ 5 سال کے لیے قائد ایوان کا انتخاب کریں گے۔ حکومت بنانے کے لیے کامیاب امیدواروں اور جماعتوں کی طرف سے مشاورتوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اعظم بلوچ، PTV نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے حوالے سے رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے۔ اب آپ کو اہم خبر دیتے ہیں سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کالعدم قرار دینے سے متعلق کیس میں درخواست گزار علی خان کو وزارت دفاع اور متعلقہ SHO کے توسط سے 21 فروری کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران درخواست گزار کی عدم پیشی پر ناخوشگواری کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عام حالات میں درخواست گزار مقدمہ واپس لینے کا مجاز ہوتا ہے، لیکن موجودہ کیس میں صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے نظام عدل اور عدالتی نظام کا استحصال کیا گیا، جس کی کسی طور اجازت نہیں دی جا سکتی۔ درخواست کی اہمیت کے پیش نظر اسے اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے دیے گئے پتے پر نوٹس بھیجا گیا، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔
दौरान समाअत अदालती अमले की तरफ से बेंच को यह बताया गया कि अदालत की तरफ दरखास्त गुजार को भेजे गए नोटिस की तामील नहीं हुई थी। दरखास्त गुजार का मोबाइल भी मुसलसल बंद है। मुकदमे की आइंदा समाअत बुध को होगी। नाज़रीन, हत्या और बेबस फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मसालिम का सिलसिला जारी है। गजा के जनूबी शहर खान यूनिस का सबसे बड़ा अन-नसीर अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया है। काबिज फोर्सेस ने अस्पताल की बिजली और ईंधन की फ्राहमी बंद कर दी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में दाखिल मरीज दम तोड़ रहे हैं। अब तक शोहदा की तादाद 8 हो चुकी है। अस्पताल के मुहासरे के दौरान स्नाइपर्स की फायरिंग से अब तक 21 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में काबिज फौज की छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबालिया पनागजी कैंप में सयूनी फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। गजा में एक इसराइली फौजी भी हलाक हो गया है। कर्नल के ओहदे के 5 अफसरान समेत गजा में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 573 हो चुकी है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइली हुकूमत गजा की पट्टी खास तौर पर रफा पर अपनी जंग जारी रखने पर इसरार कर रही है। फ़लस्तीनी खबरसां एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी क़यादत की मुलाकात के दौरान महमूद अब्बास ने कहा कि काबिज फ़ौज अब भी गजा की पट्टी के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस रफ़ा शहर पर अपनी जारहाना जंग जारी रखने पर इसरार करती है, जिसका मकसद रफ़ा से लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर करना और उनकी जबरी बेदखली की राह हमवार करना है। और आलमी अदालत इंसाफ में आज फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो रही है। मेमोरेंडम और मिस्री दरख्वास्त में अदालत से मुतालबा किया गया है कि वह बैनुल-अक़वामी सतह पर इन तमाम गलत कार्रवाइयों के लिए इसराइल की जिम्मेदारी की तौसीक करे। इसराइल को खुद समेत मक़बूजा फ़लस्तीनी इलाकों से फ़ौरी इनखला का कहा जाए और फ़लस्तीनी अवाम को होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी भी कराई जाए। यादाश्त में दुनिया के तमाम ममालिक और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल को मदद फराहम करना बंद करें। आलमी इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मिस्री इंफॉर्मेशन सर्विस के सरबराह ज़िया शवान ने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्ज़ा बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ज़मीनों को जम करने, घरों को मस्मार करने, फ़लस्तीनियों को बेदखल करने, मुल्क बदल करने और बेघर करने की इसराइली पॉलिसियाँ भी आलमी इंसानी क़वानीन को पामाल कर रही हैं। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल हो रहा है। इजलास आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तनासुर में अल्जीरिया की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। इजलास में गजा में फौरी जंग बंदी से मुताल्लिक मुतफ़िक़ा करारदाद आने का इम्कान है, ताहम अमरीका ने करारदाद को वीटो करने का इंदिया दे दिया है। और फ़लस्तीन पर सह्यूनी बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। लंदन, जर्मनी, स्पेन और उर्दन समेत दुनिया के कई मुल्कों में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ रैलियां निकाली गईं, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। वसी लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में मार्च में 2.5 लाख के करीब अफराद ने शिरकत की और गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। शुरका ने फ़रीक़ैन के दरमियान बामक़सद मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए फ़ौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। मार्च का एहतमाम मगरबी लंदन में इसराइली सफारत खाने के करीब किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हज़ारों शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीन पर हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। स्पेन के शहर मैड्रिड में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइली मंसूबे ने बैनुल-अक़वामी तशवीश को जन्म दिया है। इस तरह की कार्रवाई गजा में इंसानी बहरान को शदीद तर कर देगी। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ करे। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में भी फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और गजा की पट्टी में इसराइली मजालिम बंद कराने का मुतालबा किया। शुरका का कहना था कि इक़दाम बाइस शर्मिंदगी है कि इसराइल सहूनी वजूद को बचाने के लिए गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। हज़ारों लोग गजा की पट्टी में महसूर हैं और वो पानी, खुराक और अद्वियात समेत दीगर सहूलतों से महरूम हैं। आलमी बिरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल को कायल करे।
इस वक्त अहम खबर आपको देते हैं कि आम इंतखाबात के बाद मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स मजमूम मकासद के हुसूल के लिए सरकारी मुलाजमीन को हिरासा करने पर उतर आए हैं। आम इंतखाबात के ख़त्म होते ही मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया है। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स इंतखाबात में रियासती इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहराकर अवाम को एक बार फिर से बगावत पर उकसा रहे हैं। मखसूस सियासी जमात से जुड़े ये अकाउंट्स सरकारी मुलाजमीन को सरेआम हिरासा करना शुरू किए हुए हैं, जिनमें मुतादिद कमिश्नर्स, आरओस और पुलिस एहलकार शामिल हैं। जी हाँ, इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। जी राना शहजादुस्सलाम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी सदफ, आम इंतखाबात में सरकारी अफसरान अपने कानूनी और आइनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, उनको ऐसे गैर कानूनी तौर पर हरासा करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि सरकारी एक मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स मजमूम मकासद के हसूल के लिए सरकारी मुलाजमीन को हरासा कर रहे हैं। मखसूस सियासी जमात से जुड़े इन अकाउंट्स में इंतखाबात से मुतल्लिक जो रियासती अदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहरा कर आवाम को एक बार फिर बगावत पर उकसाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से इलेक्शन में सरकारी अफसरान जो अपने कानूनी और आइनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, उनको ऐसे गैर कानूनी तौर पर हरासा करना इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स की जानिब से सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान के अहले खाना को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत से कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर बनने वाली खवातीन अफसरान को भी हरासा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मखसूस सियासी जमात की कार्रवाइयों का नोटिस लेना होगा। किसी भी सियासी लीडर या पार्टी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सरकारी अफसरान को अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए हरासा करें। मखसूस सियासी जमात की जानब से सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चलाई जा रही है। मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान की तस्वीर शाया करके उनकी जानों को भी खतरे में डाल रहे हैं। मखसूस सियासी जमात के कारकुनान की तरफ से सिक्योरिटी अफसरान के खिलाफ ये घटिया प्रोपेगेंडा इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। मखसूस सियासी जमात के सीनियर रहनुमाओं की जानब से सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान पर लगातार इल्जामात के जरिए अवाम को इंतशार और फसाद की तरफ धकेला जा रहा है, जिसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। रियासती इदारों और सिक्योरिटी कारकुनान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम को भड़काना और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। जी राना शहजादुस्सलाम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताएंगे कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, जुड़वा शहरों में सुबह से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का ये सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सदफ अफसल से। जी सदफ, आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, जाती सर्दी फिर से लौट आई है। गुज़िश्ता हफ्ते तेज़ धूप और सर्दी की शिद्दत में कमी से हर किसी को ये इंतज़ार था कि बारिशें कब होंगी। बिलाखिर महकमा मौसमियात ने खुशी की ये नवीद सुना दी और 17 फरवरी की रात से बारिशों का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में और वस्ती बालाई इलाकों में जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी जो है वो जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत के पहाड़ और इंतहाई खूबसूरत नज़र आते हैं और यहाँ का मौसम जो है वो बारिश के बाद मज़ीद खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। हमने देखा कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर मौसम को और बारिश को एंजॉय करने के लिए निकले हुए थे। आज भी वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा यख ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और PDMA की जानिब से सयाहों को ये हिदायत की गई है कि अगर वो मरी और गलियात का रुख करें तो मौसम की सूरत हाल देखते हुए उस तरफ जाएं, क्योंकि बर्फ़ की वजह से स्लिपरी हो जाती है रोड बहुत ज़्यादा और लोगों की कोशिश होती है कि वो इस मौसम में जाके बर्फ़ को एंजॉय करें। लेकिन PDMA की जानिब से ये कहा गया है कि वो ऐसे मौसम में मरी और गलियात का रुख ना करें। और मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 21 फरवरी तक बारिशों का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से ऐसे ही जारी रहेगा। जी
नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, जबकि कटारिया के मकाम पर पानी 5 फुट जबकि गवाल मंडी पुल पर 4 फुट की सतह पर है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी कटारिया के मकाम पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट से। जी हसन, क्या सूरत हाल है, हमारे नाजरीन को आगाह करें। जी, जुड़वा शहरों में कल से जो है वो बारिश का सिलसिला मुसलसल जो है वो वक्फे के साथ जारी है। तकरीबन 30 मिलीमीटर जो है वो बारिश जो है वो जुड़वा शहरों में रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा शमशाबाद में 31 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। इसी तरह बोकरा है, चकलाला में जो है वो 25 मिलीमीटर है। बोकरा, CTTI, गोरड़ा, यहाँ पर तकरीबन 22 से 24 मिलीमीटर जो है वो बारिश पड़ चुकी है। जो पानी की सतह नापने वाले जो स्टेशंस हैं कटारिया के मुकाम पर, ग्वाल मंडी के मुकाम पर जो है उसके मुताबिक जो नाला लई के अंदर जो कटारिया का मुकाम है वहाँ तकरीबन 6.5 फुट जो है वो पानी है। इसी तरह ग्वाल मंडी में 4.5 फुट पानी है और ये सतह जो है वो मामूल के मुताबिक है। तमाम फिर भी किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से जो है वो वाक़े से निपटने के लिए जो वासा का जो अमला है वो मुकम्मल तौर पर स्टैंड बाय है। वासा ने रेन एमरजेंसी जो है वो लगा दी है। तमाम अमले की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह जो वासा का अमला है, जो MD वासा हैं, वो खुद पूरी जो है वो सूरत हाल की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। जो हैवी मशीनरी है वो रावलपिंडी के निशेबी इलाके हैं उनमें डिप्लॉय की जा चुकी है ताकि जो पानी की ड्रेनेज को जो है वो बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। शुक्रिया हसन तारिक बट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहाँ रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। नथिया गली और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मलका कोहसार में भी बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं यासिर वक़ार शाह से जो इस वक्त मरी में मौजूद हैं। जी वक़ार, हमें ताज़ा सूरत हाल से आगाह करें। मरी में रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार और ठंडा हो गया है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मरी गलियात आने वालों को खबरदार किया है। मरी गलियात का गैर जरूरी सफर ना करें। अगर सफर जारी रखे हुए हैं तो किसी महफूज जगह पर ठहर जाएं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का शदीद खतरा है। जबकि नथिया गली और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी में मौजूद सियाहों की बड़ी तादाद ने नथिया गली का रुख कर लिया है, जहां पर सियाह खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। शुक्रिया यासिर वक़ार शाह, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वादी सवात में आज तीसरे दिन भी मंगोरा और नवाही इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि कालाम में 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि मजीद बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं सवात में मौजूद हमारे नुमाइंदे शौकत अली से। जी शौकत, सूरत हाल से आगाह करें। स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा में गुज़श्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मिंगौरा से 90 किलोमीटर के फासले पर पिशमाल के इलाके तक बर्फबारी हुई है, जिसमें तकरीबन 1.5 फुट बर्फबारी हुई है और पिशमाल से कालाम तक जो रास्ता है वो भी तकरीबन बंद है और वहाँ 2.5 फुट तक बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिंगौरा शहर और नवाही इलाकों में ज्यादातर लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। शुक्रिया शौकत अली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वजीर मुवासलात शाहिद अशरफ तारड़ ने दीर में बारिश के बायस बंद होने वाले रास्तों को जल्द अज जल्द बहाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तर्जुमान NHA के मुताबिक दीर में रात के भारी बर्फबारी के बायस बंद होने वाले रास्ते खोले जा रहे हैं। NHA के अमले और मशीनरी ने अपना काम शुरू कर दिया है। NHA की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह हंगू में भी दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हंगू और औरकजई में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का एक नया सिस्टम दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से कोयटा में रात भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजीज मरी से। जी अजीज मरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम जो है दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से जो है मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। रात भर जो है वक्फे से कोयटा और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला भी जारी रहा है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफला में जो है बारिश के साथ जो है पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान बताया जा रहा है, जबकि जो साहिली इलाके जिनमें जीवनी, गवादर, पसनी, वहाँ पे जो तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है।
जबकि अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो कोयटा का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि कलात में इस वक्त जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो -2 डिग्री है। जबकि अगर हम साहिल इलाकों की तरफ चलते हैं तो इसे जो जीवनी का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी स्कर्दू में भी आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। स्कर्दू के मज़ाफ़ात के पहाड़ों और तमाम बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। खराब मौसम के बायस आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं स्कर्दू में मौजूद अपने नुमाइंदे कासिम नसीम से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी, आज सुबह से स्कर्दू में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद ये बर्फबारी शुरू हो गई है और बड़ी शिद्दत की बर्फबारी इस वक्त हो रही है। और जो इतलात बल्तिस्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों से मिल रही है, इस वक्त बल्तिस्तान डिवीज़न के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद तरीन बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के बायस आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान जो परवाज़ है वो भी मनसूख हो गई है और जुगलोट स्कर्दू रोड भी शंग उसके मकाम पर जो मिट्टी के तोदे हैं वो इसके गिरने के बायस हर किस्म के ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हो गई है। और बल्तिस्तान डिवीज़न के जितने बलाई इलाके हैं वहाँ पर भी जो गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त है उसका सिलसिला रुक गया है। आज जो स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस शदीद तरीन बर्फबारी से एक तरफ जहाँ लोगों की ज़िंदगी महदूद हो गई है, लोग घरों के अंदर महबूस हो गए हैं, वहाँ लोगों में एक खुशी का भी समा है कि तवील खुश्क साली के बाद आज बर्फबारी हुई है। और क्योंकि काश्तकारी का सीज़न भी अब करीब है, लिहाजा इस बर्फबारी से आने वाले दिनों में जो काश्तकारी शुरू होगी उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और जो तवील खुश्क साली के बाद जो मौसमी बुखार और मुख्तलिफ बीमारियाँ आम हो गई थी उसके अजाले के हवाले से भी ये मददगार साबित हो सकता है। जी नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और शिमाली बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और खित्ता पोठवार में तेज़ मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। कालाम -5, मालम जब्बा -4 और गोपस में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और यहाँ पर खबरनामे में शामिल खबर करेंगे भारत से, जहाँ किसानों का दिल्ली चलो मार्च 6ठे दिन भी जारी है। दिल्ली चलो मार्च के 6ठे दिन भारतीय किसानों के हक में दूसरे मसाहिब के अफराद भी शामिल होने लगे। भारत के शहर केरला का चर्च ऑफ साउथ इंडिया भी दिल्ली चलो मार्च के हक में सामने आ गया। चर्च के पादरी मलायल साबू कोशे का कहना था कि एहतजाज की हिमायत करने का हमारा अज़्म इंसाफ और मसावत का मुंहबोलता सबूत है। हमारे मुल्क के ज़राई शोबे की पायदार तरक्की के लिए किसानों को उनके हुकूक देना होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत या तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुआहिदे से दस्तबरदार हो जाए या किसानों की शराइत पर नज़रसानी करे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी हुकूमत को भारतीय किसानों के लिए बदतरीन करार देते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग की गई। ये तरबियती मशकें पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस को अपनी ताकतों को हम आहंग करने, महारत का तबादला करने और तजर्बात के जरिए अपनी फौजी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक मुनफरिद जरिया फ्राहम करेंगी। अफवाद ने भरपूर तरीके से तरबियत में हिस्सा लिया और नहायत खुशउस्लूबी और बुलंद जज्बे के साथ तरबियत हासिल की। दोनों फोर्सेस ने दहशतगर्दी की तनासुर में हेलीकॉप्टर से मशकों पर उबूर हासिल करने के लिए सख्त ट्रेनिंग की। इन मशकों के जरिए खित्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात को कम करने में खासी मदद मिलेगी और अमन लाने की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त साबित होगी। और मुल्क भर में गुज़श्ता साल सितंबर से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 5 जनवरी से 11 फरवरी तक मुल्क भर में 77 कार्रवाइयाँ की गईं। इस दौरान खाद, आटा और बड़ी मिक़दार में चीनी बरामद की गई। 1 सितंबर से अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 400 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं और खाद, आटा और चीनी बरामद की गई है। निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतल्लिका हुकूमती इदारे मुल्क की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
शोहदाए वतन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। सिपाही फयाज अहमद शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही फयाज अहमद ने 24 जनवरी 2012 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। उन्होंने सोगवार में वालिदा, बेवा और बेटा छोड़े। सिपाही फयाज अहमद शहीद के लवाहिकीन ने अपने जज्बात का कुछ इस तरह से इजहार किया। ड्यूटी के दौरान ही जो है ना तो शहीद हो गए। कॉल आई थी उनके यूनिट से, कॉल आई थी उसी दौरान, क्योंकि उन्होंने जैसे रास्ता यूनिट वालों ने किया, उन्होंने सुना और फ़ोन कट गई। मुझे दिल पे जैसे ना ऐसे अजीब महसूस हो रहा था, अजीब ख्याल हो रहे थे मेरे कुछ ना कुछ मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। उनके बस जैसे फ़ोन कट गई तो फिर उनके बाद जो है ना 4-5 दिनों के बाद ही पता चला मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं, शहादत पा गए। वो बहुत अच्छा था बच्चा, खेलता था, उसी बोलता था तो मुझे फौज में जाना ही है। वो मेरा बहुत ख्याल करता था, वो अच्छा बंदा था, मुझे बहुत फिक्र होता था उसी का। वो मेरे से भी वो बहुत करता था बातें, ये अम्मी ऐसे, पर मेरे बच्चों को ज्यादा था। मुझे आज तक भी उसी का दुख होता था। कह रहा अम्मी मुझे दुआ करना, मैं बस शहीद हो जाऊं। मुझे जाना ऐसे भी इंसान को मरना है पर मुझे शहादत मिले, तो शहादत उसी को मिली। वो बहादुरी है। बहुत मुझे दुख भी था, खुशी भी हुई थी। वो शहीद नहीं, वो जिंदा है। जब मेरा कोई शहीद हुए थे मैं 6 महीने का था। हर रोज मैं पिक्चर देखता था, मुझे ख्वाब में आते थे, मुझे बताते थे हर रोज नमाज पढ़ना और बड़े होकर फौजी बनना। और यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से, जहाँ काबिज़ हुकाम ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू से कबल सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस एहलकारों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है, जो शाहराहों और सड़कों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। श्रीनगर, कुलगाम, इस्लामाबाद, रामबन, जम्मू, उधमपुर, राजौरी और पुंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी और छापों का सिलसिला जारी है। फौजियों की मुसलसल मौजूदगी से मकामी आबादी में खौफ फैल गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मोदी के दौरे से कबल मकबूजा इलाके में मुसलसल महासिर तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों की मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि काबिज़ हुकूमत कश्मीरी अवाम को हिरासा करने के लिए तालिबाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा एक सियासी तनाज़ा है। मुल्क के 3 बड़े शहरों में कार्रवाइयों के दौरान वेब्स की तकसीम में मुलव्वस बैन सूबाई मुनशियात फरोश ग्रुप से मुंसलिक 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद से चर्स के तेल से भरे वेब्स और भंग के पौधे से बने सिगरेट रोल भी बरामद हुए। मुलजिमान कुदरती मसनूआत और अद्वियात की फरोख्त की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मनशियात की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया। मुलजिमान कार्गो कंपनीज के जरिए बैरून ममालिक से ममनुआ अशिया दरामद करते थे। ANF ऑनलाइन कारोबार के लिए हुकूमती कवानीन और मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार को नाफिज करने के लिए कोशां है। फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार आगा तालिश को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। उनकी मुनफरिद अदाकारी का सहर आज भी बरकरार है। आगा तालिश ने अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तान की फिल्मी सनत को अलग पहचान दी। आगा तालिश भारतीय शहर लुधियाना में पैदा हुए और अपने फनी करियर का आगाज बम्बई से किया। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आने को तरजीह दी और अपने मुनफरिद अंदाज के बायस बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। वो हर किरदार को इस खूबसूरती से अदा करते कि उसमें हकीकत का रंग नजर आता। उन्हें डायलॉग्स की अदायगी में कमाल हुनर हासिल था। फन के बादशाह ने अपने ऊपर मखसूस किरदार की छाप नहीं लगने दी। फिल्म में मरकजी किरदार हो या विलन का रोल, आगा तालिश हर अंदाज में मुनफरिद नजर आए। आगा तालिश साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि बड़े सगीर का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत अच्छे इंसान और बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट थे। आगा तालिश 4 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे और लाखों शायकीन के दिलों पे राज किया। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में अपने फन के जोहर दिखाए। उन्हें आला कारकर्दगी पर सदारती अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड्स मिले। आगा तालिश की नुमाया फिल्मों में शहीद, फरंगी, जरका, आहत, धीरानी और अन्नदाता शामिल हैं। आगा तालिश के निभाए अंदाज और किरदार आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
जामिया इस्लामाबाद का 32वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान, डॉक्टर साजिदुर रहमान समेत उलमा व मशाइख की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत पीर सैयद नवीदुल हसन शाह मशहदी ने, जबकि सरपरस्ती जामिया इस्लामाबाद के चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद जफर इकबाल जलाली साहब ने की। कॉन्वोकेशन में 100 से जायद एमफिल PhD स्कॉलर्स को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर 150 से जायद हुफ्फाज़ कराम, उलमा और मुफ्तियान कराम की दस्तारबंदी भी की गई। सिख मजहब के त्यौहार साका ननकाना साहब की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में शुरू हो गई हैं। 21 फरवरी तक जारी रहने वाली तकरीबात में मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से सिख यात्री शिरकत करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। सिख मजहब में हर साल साका ननकाना साहब का त्यौहार इन 200 सिखों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 21 फरवरी 1921 को गुरुद्वारा जन्मस्थान को हिंदुओं और अंग्रेजों के कब्जे से आजाद करवाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। यशवंत सिंह के अगवाई में 200 के करीब सिख जांबाज गुरुद्वारा साहब पहुंचे। इन सिंहों पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में तमाम लोग यहाँ पे शहीद हो गए। यहाँ से सिख लहर शुरू हुई। इसके बाद दुनिया भर में जहाँ पे भी हमारे गुरुद्वारा साहब मंतों के कब्जे में थे, उनसे छुड़वाए गए। साका ननकाना साहब की 3 रोजा तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से हुआ, जिसमें अंदरूनी मुल्क और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सिख यात्रियों ने शिरकत की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। उन्होंने तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजामात करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इस सके तो सानू ये नसीहत भी मिलती है कि कतन किसी के धर्म स्थान के उत्ते जाके बेअदबी नहीं करनी चाहिए। बहुत पीसफुल लग्या, मन बहुत ही चंगा लग रहा, बड़े लोग चंगे ने, इन्ना इज्जत मान करते ने। बहुत ही वधिया प्रबंध है जी, सारा कुछ बहुत ही सोहना है, कोई कंप्लेंट नहीं हैगी। ਅਸੀਂ कहने भी 100 चो 1000 नंबर दिन्ने आ बाबे। तकरीबात में शरीक सिख यात्री ननकाना साहब शहर में वाक़या 7 गुरुद्वारों की यात्रा और वहां अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करेंगे। 21 फरवरी को होने वाली साका ननकाना साहब की मरसी तकरीब में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहदेदारान और मुख्तलिफ ममालिक से सिख रहनुमा शरीक होंगे। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। गिलगित शहर के करीब वाक़ कारगाह बुधा बुद्ध मत पैरोकारों की निशानी को जाहिर करता है। इस तारीखी और सयाहती मुकाम की सैर हमें कराएंगे गिलगित से नज़ाकत अली अपनी इस रिपोर्ट में। गिलगित शहर से शुमाल की तरफ सयाहती मकाम कारगाह बुधा वाक़ा है, जिसे मुकामी ज़बान में यठनी कहा जाता है। कारगाह बुधा 7वीं सदी में तामीर किया गया है। पहाड़ी के दरमियान बनाए जाने वाले इस फन शाहकार को देखकर अकल दंग रह जाती है। कारगाह बुधा की बुत मत के पैरोकार इबादत करते हैं। यठनी के बारे में मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। पहले यहाँ पर बुत मत कौम रहते थे, तो उन्होंने अपनी इबादत के लिए बनाया है इसे। कारगाह बुधा को देखने के लिए जाने वाले सयाहों की आसानी को मद्देनजर रखकर गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा पार्क तामीर करवाया है। पहाड़ी तक सीढ़ियां बिछाई हैं, जिससे इस मकाम की खूबसूरती मजीद दोबाला हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में कसरत से तारीखी मकामात पाए जाते हैं, जिनकी तारीखी अहमियत के साथ साथ मुख्तलिफ कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यठनी भी इनमें से एक है। नज़ाकत अली, गिलगित। और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में निगरां वफाकी वजीर जमाल शाह की पेंटिंग्स की नुमाइश हुई। इस मौके पर पाकिस्तान की मादरी जुबानों के अदबी मेले का भी एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं समीरुल्लाह। मिनिएचर पेंटिंग के मशहूर उस्ताद बशीर अहमद ने निगरां वफाकी वजीर कौमी विरसा और सकाफत जमाल शाह की बनाई हुई पेंटिंग्स का इफ्तिताह किया। नुमाइश में जमाल शाह के 25 फनपारे रखे गए हैं। जमाल शाह ने अपने फनपारों में वर्किंग क्लास के मसाइल को उजागर किया है। नुमाइश 3 मार्च तक जारी रहेगी। PNCA और इंडस कल्चरल फोरम की जानिब से पाकिस्तान की मादरी जबानों के अदबी मेले का भी एहतमाम किया गया। मेले से खिताब में वफाकी वजीर कौमी विरसा और सकाफत जमाल शाह ने कहा कि इलाकाई जबानें अवाम को आपस में जोड़ने का जरिया हैं। हमें इलाकाई जबानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में किरदार अदा करना होगा। मैं समझता हूँ कि जो इल्म, जो इंफॉर्मेशन, जो नगमे, जो मोहब्बत, जो प्यार आपको अपनी जुबान में ट्रांसफर होता है, वो आपके वजूद का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि वो अलग हो ही नहीं सकता। निगरां वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि हुकूमत ने मादरी जबानों को भी कौमी जबान का दर्जा दिया है। अदीब और शायर मादरी जबानों के फरोग में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। कि हम सिंध के लोग, पंजाब के लोग, सराय की हमारे भाई, हमारे गिलगिती भाई, कश्मीरी भाई,
बलूचिस्तान में बलोही और बलूची भाई अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं। मेले में फनकारों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की सकाफत की अक्कासी करते हुए रक्स भी पेश किए। लोक फनकारों ने इलाकाई जबानों में गीत पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। जारी रहने वाले इस मेले से नई नस्ल को अपनी मादरी जबानों से रोशनास होने में मदद मिलेगी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।